But I'm telling you, you will find out that faith is that master key that can unlock every closed doors in your life. पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस बात को जान ही लेंगे कि विश्वास वो महाचाबी है जिससे आप जिंदगी के हर एक दरवाजे को खोल सकते हो। Through faith we got saved. विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया। Through faith we get our healing. विश्वास के द्वारा चंगाई पाते Through हैं। faith you can come out of poverty. विश्वास के द्वारा गरीबी से आप बाहर आ Through सकते faith you हैं। can build your ministry. विश्वास के द्वारा अपनी सेवकाई को बढ़ा Through सकते हैं। faith you can cut the head of giants. विश्वास के द्वारा दानवों के सर को काट Through सकते faith हैं। you can enter the promised land. विश्वास के द्वारा वायदे के देश में प्रवेश Through कर सकते faith, हैं। through faith, through विश्वास के faith, द्वारा विश्वास के start द्वारा using faith in विश्वास every का इस्तेमाल closed door करें। that has been closed for ages. And as you apply faith and unlock those doors, every closed door will start to respond to faith. विश्वास का इस्तेमाल करके हर उस दरवाजे को खोलना शुरू करें जो आपके जीवन में बंद पड़ा था। विश्वास के द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। Amen. That woman who had the issue of blood for 12 years. वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी, Praise God, she was not a victim. Otherwise, she would have died like that. प्रभु की स्तुति हो कि वो बेचारी नहीं थी, नहीं तो वो वैसे ही मर जाती। She heard that Jesus is coming in her town. उसने सुना कि यीशु उसके नगर में आ रहे हैं। She had all the reason to not come to the meeting. उसके पास सारे कारण थे सभा में नहीं आने के लिए। She was weak, कमजोर थी, had gone to the best doctors. सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास गई थी, She had no hope. कोई आशा नहीं थी उसके पास। There was no friend bringing her. उसका कोई दोस्त नहीं था उसको लाने वाला। There was no bus coming from Jerusalem to where. कोई बस नहीं आ रही थी जेरूशलेम से उसके घर तक। There was her body feeling like going? No. क्या उसके शरीर में बड़ी हिम्मत थी कि वो जाए? नहीं। But the Bible says she made a decision. पर बाइबल कहती है उसने ठान लिया। And in Greek, it does not say, English Bible says she said, but in Greek Bible it says she kept on saying. She got out of her bed and she said, today when I touch the hem of his garment, I shall be made whole. Today when I touch the hem of his garment, I shall be made whole. Today when I touch the hem of his garment, I shall be made whole. Today, and saying that, she kept piercing the crowds. हिंदी और अंग्रेजी बाइबल में लिखा कि उसने कहा कि जब आज उसके कपड़े के छोर को मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन यूनानी भाषा में ऐसा लिखा है कि वो कहती रही, वो अपने बिस्तर से उठी और कहती रही कि आज जब उसके कपड़े के छोर को मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज उसके कपड़े के छोर को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती रही और भीड़ में से भेदते हुए उसकी ओर बढ़ती रही। I want to ask you this question. What are you saying right now? Why have you come? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर क्या लेने के लिए? It's time you start saying something. ये समय है कि आप कुछ कहना शुरू कर दें। Because faith is released by speaking. क्योंकि विश्वास बोलने के द्वारा काम करता है। Tell God. Tell him. परमेश्वर से कहे, Why have you come today? उससे कह दे आप Say, यहाँ क्यों आए Father, हैं? today when your word is being preached, I am gonna catch hold of the spirit of faith. कहे पिता, आज जब आपका वचन प्रचार हो रहा होगा मैं विश्वास की आत्मा को पालूंगा। Amen. And when she touched Jesus, और जब उसने यीशु को छू लिया, the Bible says instantly the healing virtue came out of Jesus and made her whole. बाइबल कहती है एकाएक यीशु में से चंगाई की सामर्थ्य निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। And you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या It's कहा? amazing. He said, daughter, उसने कहा, your faith has made you whole. बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Amen. If faith can heal a woman who was sick for 12 years and gone beyond medical hope, then that same faith can heal you, your bodies, your families, your finances, your ministry, and any area. अगर विश्वास उस औरत को ठीक कर सकता है जो 12 वर्षों से समस्या में थी, मेडिकल साइंस उसकी मदद नहीं कर सकती थी, तो वो विश्वास आपको, आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके पैसे के क्षेत्र, हर एक बात को चंगा कर सकता है आज। Amen. आमेन। Expectation is the breeding ground for manifestation.
उम्मीद करना जन्म देता है आपके जीवन में प्रकट होने को। Amen. So I want to ask you, what is your expectation? तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज आपके साथ होगा? Why have you come? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? What are you expecting? किस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आज होगी? Give God some substance that He can work on. परमेश्वर को कुछ ठोस दे जिसके साथ वो काम कर सके आपके जीवन में। Don't just be vague. Oh God, let me be blessed. What does that look like? सिर्फ ये ना कहें कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए, लेकिन दिखाई कैसे देता है कि आप आशीषित हैं? कैसा दिखता है वो? Amen. We're just about to go into the Word where Bishop Para will come. हम वचन में जाने वाले हैं जब बिशप पटा आएंगे हमारे बीच में। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, in this place there are many pastors. I want to honor every pastor who has come here. इस जगह पर बहुत से पास्टर्स मौजूद हैं। मैं हर एक पास्टर जो यहाँ मौजूद है आपका आदर करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। I want to honor the man of God, Thomas George uncle and auntie. मैं परमेश्वर के जन थॉमस जॉर्ज अंकल आंटी का स्वागत करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। He's an apostle to this nation, वो इस देश के लिए एक प्रेरित है। and I cannot tell you और how our lives got impacted when we met him. मैं बयान नहीं कर सकता कि हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव हुआ जब हम उनसे मिले। तो Do you know why devil hates when you start to honor men of God? You know what will people start saying? Oh, they are worshiping people. आप जानते हैं Devil hates it because he knows it's only by honor inheritance is transferred. आप जानते हैं कि शैतान नफरत करता है जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर करना शुरू करें। लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये तो लोगों की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि आदर वो रास्ता है जिसके द्वारा आप विरासत हासिल कर सकते हैं राज्य में। Let me say this way. मैं ऐसे You कहूंगा, cannot receive from any vessel of God that you don't honor. परमेश्वर के किसी भी बर्तन से आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उनका आदर नहीं करते। Honor is not worship, church. आदर आराधना नहीं है चर्च। Read the Bible. बाइबल पढ़ के देख लो। Honor is recognizing the grace that God has given to a man. आदर उस अनुग्रह को पहचानना है जो परमेश्वर ने एक परमेश्वर के जन के ऊपर दिया है। Once God gives a grace to a man, it distinguishes him, and if you don't recognize it, you cannot receive from that vessel. एक बार परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो परमेश्वर उस व्यक्ति को अनोखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप उस अनुग्रह को नहीं पहचानेंगे तो आप उस अनुग्रह को नहीं पाएंगे। You know, James was the brother of Jesus. याकूब यीशु के भाई थे। He doesn't write in the letter, my bro Jesus. वो अपनी पत्री में ये नहीं लिखता कि मेरा भाई यीशु। When he writes the letter, he writes, a bond servant of Lord Jesus Christ. जब वो अपनी पत्री लिखते हैं तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ मजदूर। May God give you the eyes to recognize the people whom He has anointed for this generation. परमेश्वर आपको वो आंखें दे ताकि आप पहचान सके जो लोग परमेश्वर ने इस पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए अभिषेक किए हैं। Amen. So now, what is going to happen here is, let me tell you something that many people don't know. मैं बताता हूँ यहाँ पे When क्या different होगा। men of God gather in this place, gather in one place, there is a corporate anointing. जब परमेश्वर के अलग अलग जन एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वहां पर सामूहिक अभिषेक होता है सबका इकट्ठे होने के कारण। The atmosphere is charged. जो वातावरण है वो भरा होता है ऊर्जा से। There is a place where many graces are meeting, and if you are wise in the spirit, you will take advantage of such meetings. क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे अनुग्रह एक साथ मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस मौके का फायदा उठाएंगे। Amen. Hallelujah. I believe our life has never be the same again. मैं ये मानता हूँ कि हमारी जिंदगियां पहले जैसी नहीं रह We are जाएंगी। going from glory to glory to glory. हम महिमा से महिमा में बढ़ रहे हैं। Amen. आमीन। So we are going to worship God for some time. हम परमेश्वर की आराधना करने वाले I कुछ don't- समय। I can preach, मैं प्रचार कर सकता हूँ, but I have a problem. लेकिन मेरी You know what the दिक्कत problem है। आप is. जानते हैं वो दिक्कत क्या है? If I start preaching, अगर मैं प्रचार करने I'm लगूं going to take Bishop Pata's time and Dr. Minister's time. I don't want to do तो that. बिशप पटा डॉक्टर में से सबका टाइम मैं ले लूंगा, पर मैं वो करना नहीं चाहता, So I am not going there. तो मैं वहां नहीं जा रहा। Okay?
Today I am here in this meeting not to preach but to receive.